خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اکلوتا بیٹا جو باپ کی گور میں ہے، گور میں ہے، اور مسیح گور میں ہے. خود تو نہیں مانتا بدل گیا. اکلوتا بیٹا گور میں ہے. گور کسے کہتے ہیں؟ اکلوتا بیٹا قبر میں ہے. اکلوتا بیٹا قبر میں ہے. اکلوتا بیٹا گور میں ہے. اور مسیح الاعلانیہ کہتے ہیں اکلوتا بیٹا گور میں تھا. گور غالب نہیں آئے، وہ گور کو اپنے پاؤں سے کچل کر، موت کو اپنے پاؤں سے مسخ کر کے گور سے نکل کر باپ کی سیدھی گود میں گور میں. اب گور میں، اب گور میں، اب گور سے نکل کر، یادوا سے گور سے نکل کر اور گود میں ہونے کی حیثیت سے زندہ ہے. گور میں ہونے کی حیثیت سے اور زندہ یسوع کلیسیا سے بیان کرتا ہے جہاں میں ہوں وہاں، جہاں میں ہوں وہاں، جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. زندہ یسوع کلیسیا سے بیان کرتا ہے. اور بیان سنیے، رسول فرماتا ہے اے بھائیو، میں تمہیں بڑے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں مریں گے بلکہ سب بدل جائیں گے. اور یہ پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھ کھڑے ہوں گے. اور جو ہم زندہ باقی ہیں سارے کے سارے، اونچی بولو ذرا تھوڑا جا آخری گزارے، اونچی بولو، سارے کے سارے بدل جائیں گے. اور رسول پھر فرماتا ہے تسلونیکیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے بیان کرتا ہے، کیونکہ خداوند خود للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ ادھر آئے گا. پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے ہیں وہ جی اٹھیں گے، پھر ہم سب جو زندہ باقی ہیں بدل جائیں گے اور ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. مسیح نے موت کو شکست دی، مسیح نے گناہ کو شکست دی. موت اس لیے مسیح پر آئی کہ میں گنہگار تھا، قبر میری تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ مسیح کی اپنی قبر تھی، مسیح اپنی قبر میں ڈالا گیا. یہودی روایت کے مطابق یہ ہے کہ قبرستانوں کے اندر قبریں خود بنائی جاتی تھی اور یہودی اپنی قبروں کو تراشتے تھے، یہودی اپنے مقبرے خود بناتے تھے، یہودی اپنی موت سے پہلے زمین لوٹ کرتے تھے، یہودی مرنے سے پہلے ایک خطہ لیتے تھے جس کے اندر وہ اپنی قبر خود تیار کرواتے تھے. جیسے ابراہیم نے قبریں تیار کروائی، ابراہیم نے مقفلہ کے قبرستان کے اندر جسے حبرون کہا جاتا ہے اور جو یروشلم سے 19 کلومیٹر دور ہے اور جو پہلے مقدس داؤد کا بھی شہر بن چکا تھا، جہاں مقدس داؤد سلطنت کرتا تھا، وہاں اس نے اپنے لیے ہتی سے قبرستان لیا. اور جب ہتی سے اس نے قبرستان لیا، ہتی کی قوم سے قبرستان لیا، اس قبرستان کے اندر اس نے غاروں کے اندر اپنے مردے دفن کیے. یہودی روایت ہے کہ انسان مرنے سے پہلے اپنی قبر کو تیار کرتا ہے، لیکن میرے آقا نے اپنی قبر تیار نہیں کروائی. یہودی روایت کو کنڈیم کیا، اپنی قبر تیار نہیں کروائی، بلکہ لکھا ہے جب اسے صلیب سے اتارا تو کس کی قبر میں رکھا گیا؟ بلند آواز سے کس کی قبر میں رکھا گیا؟ یوسف ارمتیہ کے یوسف کی قبر میں اسے رکھا گیا. بھائیوں بہنوں، میرے یسوع کی تو اپنی قبر بھی نہیں تھی، وہ قبر بھی کسی انسان کی تھی. وہ قبر میری تھی، وہ قبر آپ کی تھی، وہ قبر آپ کی تھی. قبر کے اندر میں نے جانا تھا، قبر کے اندر آپ نے جانا تھا. گناہ کی مزدوری موت مجھ پر فتویٰ واجب تھا، اس سبب سے میں نے قبر کے اندر جانا تھا. لیکن میرے آقا نے ارمتیہ کے یوسف کو پیچھے کیا، گویا انسانیت کو پیچھے کیا، آدمیت کو پیچھے کیا، انسانوں کو پیچھے کر کے انسانوں کی قبر کے اندر خود لیٹ گیا. اور تیسرے دن اسی قبر کو خالی کر کے اعلان کیا کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا ایک دن آئے گا جب وہ بھی موت کو فتح کا لقمہ بنا کر جس طرح میں تیسرے دن زندہ ہوا ہوں وہ بھی زندہ ہو جائیں گے، وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے، ان کی قبریں بھی خالی کر دی جائیں گے.
इंसानों की कब्रें ईमान के वसीला से खाली होने वाली। यीशु की कब्र के ऊपर आज भी लिखा हुआ है, वो बुलंद आवाज से कब्र के ऊपर क्या लिखा? इंटरनेट पे जाएं, यीशु की कब्र खोले और यीशु की कब्र के ऊपर लिखा है, he is not here, he is risen। वो यहाँ नहीं बल्कि और जिसकी कब्र खाली है, जिसके ऊपर लिखा है वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है, तो जो उस पर ईमान लाएंगे, जो उसे अपना बादशाह मानेंगे, जो उसे अपना खुदावंद मानेंगे, एक टाइम आएगा जब उनकी कब्रें भी खाली हो जाए। इकलौता बेटा बाप की गोद में है, ताकि जहां मैं हूं वहां जो यीशु पर ईमान लाता है उसके गुनाह मुआफ हो जाते हैं और उसे उस पर दूसरी मौत का इख्तियार नहीं। ये खाक है, खाक में जाना है। और रसूल फरमाता है फानी बदन जलाली बदन बन जाएगा। बोया फानी हालत में जाएगा, जलाल की हालत में उठेगा, जिल्लत की हालत में बोया जाएगा, जमाल की हालत में खड़ा किया जाएगा। ये बदन खत्म हो जाएगा, ये बदन बोया जाएगा, लेकिन ये बदन सुनिए, ये बदन कब्र के अंदर अमानतन रखा जाएगा। जैसे मेरे आका की लाश अमानतन रखी गई, 3 दिन के बाद वापिस उठ गए, ये बदन भी अमानतन रखा जाएगा। और ये बदन जब अमानतन कब्र के अंदर रखा जाएगा तो मेरा आका जब आसमान से ललकार से साथ आवाज के साथ फरिश्तों के गिरोह के साथ आएगा, तो जितने यीशु पर ईमान रखते हैं, जिस तरह वो लाजर की कब्र पर गया और जाकर उसने क्या कहा, बुलंद आवाज से जाकर उसने क्या कहा, और वो फरमाता है मैंने तुम्हारे नाम मैं तुम्हें नाम बनाम जानता हूं और मैंने तुम्हारी तस्वीरें अपनी हथेली पे खोद रखी है। वो आसमान से नीचे आएगा, नाम लेना शुरू करेगा। अगर वो कह दे मुर्दे उठ जाओ, सारी दुनिया की मुर्दे उठ जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं करेगा, वो ऐसे नहीं करेगा। वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है, वो नाम लेगा और जिस मुर्दे का नाम लिया जाएगा उस मुर्दे की कब्र खाली हो जाएगी। उनकी आका की कब्र के ऊपर क्या लिखा है, वो यहाँ, क्योंकि मौत फतह का लुकमा बन गई, तो आपकी कब्रें भी खाली कर दी जाएगी। आज हमारे अजीज बहुत से बिछड़े हुए हैं, हमें अफसुर्दगी है, हम रोते हैं। ईस्टर करीब है, क्रिसमस करीब जब आता है, फेस्टिवल्स आते हैं। जिस तरह शमूएल की किताब में लिखा है, मुकद्दस दाऊद का दोस्त कहता है कल नया चांद है और तू याद आएगा, कल नया चांद है तू याद आएगा, लेकिन तेरी जगह खाली रहेगी। आपकी जिंदगियों के अंदर भी बहुत खालीपन है, आपके अजीजों के बिछड़े का। हो सकता है किसी का बाप बिछड़ गया है, किसी की मां बिछड़ गई है, किसी का भाई बिछड़ गया है, किसी की बहन बिछड़ गई है, किसी की बीवी बिछड़ गई है, किसी के बच्चे बिछड़ गए हैं, किसी के नौजैदा बच्चे इस दुनिया से कूच कर गए हैं। आंखें आंसुओं से भर जाती है, दिल गम से भर जाता है और हम खुद भी मौत को देखकर परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं आज खुदा का खादिम होते हुए आपसे कहूंगा, मसीहियों के लिए मौत, मसीहियों के लिए मौत, मसीहियों के लिए मौत मुंतकिली का नाम है, ट्रांसफर हो जाने का नाम है, प्रमोट जाने का नाम है, प्रमोशन हासिल कर लेने का नाम है। और उनकी कब्रें भी खाली किए जाएंगी, क्योंकि मसीही मौत का फतह का, मसीहियों का ईमान है कि लुकमा बन गई है, उनका यीशु भी कब्र में नहीं है और उनके मारने वाले भी कब्रों में, जहां मैं हूं वहां अपने सरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करके बैठे रहेंगे। चल हमें बैठे रहेंगे, इसके बाद मैं बीमारों के लिए दुआ करूंगा। हम शुक्रगुजारी करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे और शुक्रगुजारी इस बात के लिए करेंगे कि खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे फजल दिया। अगर आपके कोई अजीज बिछड़ गया है, कोई मौत हो चुकी है घर में, उसके लिए शुक्रगुजारी करें। खुदावंद वो बिछड़ गया है लेकिन वो तुझ में मरा है, उसके गुनाह तूने मुआफ किए हैं, उसने मसीह यीशु को कबूल किया है और वो भी जिस तरह तेरा बेटा यीशु ने मौत को फतह का लुकमा बनाया, वो आर्जी तौर पर कर बन गया है और वो दोबारा जिंदा किया जाएगा। और आप बहनों भाइयों, मौत से ना घबराएं। मौत भयानक लफ्ज है, डरावना है, लेकिन मसीह ने मौत अपने ऊपर लेकर इंसानों को मौत से आजाद कर दिया है।
क्योंकि वो एक बार इंसानों का मरना है, लेकिन वो दोबारा इन्हें मरने ना देगा। उसने कहा मैं मर गया था, अब जिंदा और अब्दुल अबाद तक जिंदा रहूंगा, और जो मेरे मानने वाले हैं वो भी अब्दुल अबाद तक जिंदा रहेंगे। और आपने दुआ की है, बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, और मैं दुआ करता हूं ये हम में हो। जिस तरह बाप अबदी है, अबदियत उसके अंदर है, वो आपको मौत में से निकालकर अबदियत में ले जाएगा। वो आपको खाक की हालत से जलाली हालत में ले जाएगा। वो आपको जिल्लत की हालत से जलाल की हालत तक ले जाएगा। वो आपको खाकी हालत से अबदियत में ले जाएगा। हम खाक है, खाक में लौट जाएंगे, लेकिन ये खाक, ये फानी बदन गैर फानी होकर मसीह के पास हमेशा 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 रहेगा। दुनिया खत्म हो जाएगी, सूरज चांद खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद मसीहियों पर मौत नहीं आएगी, इसके बाद उसके मानने वालों पर मौत नहीं आएगी। आइए शुक्रगुजारी करें, चल हमें शुक्रगुजारी करें। और अगर आज आप में से कोई ऐसा है जो आज रात कलाम के वसीला से मसीह यीशु को जिंदगी देना चाहता है, और वो चाहता है कि यीशु मेरे गुनाह तू उठा और मेरी कब्र के अंदर तू डला है, और तूने मेरी कब्र के अंदर जाकर कब्र के बंद को तोड़ा और मौत और फतह का लुकमा बना दिया, और मौत के डंक को, कब्र के जोर को तोड़कर तीसरे दिन जिंदा हुआ। खुदावंद मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ, मुझे भी इसी तरह अपनी तरह जिंदा करना। आज जो लोग यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों का इकरार करके उसे कबूल करना चाहते हैं, वो अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। मैं उनके लिए दुआ करना चाहूंगा। जो लोग यीशु मसीह को कबूल करके चाहते हैं खुदावंद मैंने बड़ी देर तुझसे दूर रहा और अब मैं तेरे बेटे यीशु को कबूल करता हूँ और अपने गुनाह तुझे देता हूँ, जो अपने गुनाह यीशु को देना चाहता है, ताकि खुदावंद यीशु आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले और आपकी मौत को भी खत्म करे, और आप एक बार जरूर मरेंगे, क्योंकि इंसान की उम्र की मियाद 70 बरस या कुव्वत हो तो 80 बरस, लेकिन इसके बाद वो आपको गैर फानी हालत में उठाएगा। अपने हाथों को बुलंद कर लेंगे, अपने हाथों को बुलंद कर लेंगे और दुआ कर, अपने हाथों को बुलंद करें। हालेलुया। अपने हाथों को बुलंद कर लेंगे, दुआ करना शुरू करेंगे, खुदावंद की तारीफ करें और कहे खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं। अपने हाथों को बुलंद करें और कहे खुदावंद मैं अपने गुनाह तुझे देती हूं, तुझे देता हूं, और मेरा ईमान है कि आज खुदा बड़ी बरकत लाएगा, बड़ी बरकत आएगी। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं इन जानों के लिए, इन रूहों के लिए जिन्होंने आज तुझे कबूल किया है। इनकी अर्जों को, इनकी मिन्नतों को, इनकी दरखास्तों को आपने हुजूर मकबूल फरमा, और इन्हें यीशु मसीह के नाम से 22 बरकत ठहरा, ताकि ये 22 बरकत हो और तेरे नाम को जलाल दे, और इनके गुनाहों को अपने ऊपर उठा के अपनी कुदरत के कलाम से इन्हें भी जिंदा फरमा, मसीह यीशु के वसीला से, आमीन। आइए हम अपनी जगह पर बैठेंगे। चल में सर मैं आपके ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इसके बाद हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। क्वायर से गुजारिश है कि अगर वो है तो हम बीमारों के लिए भी दुआ करेंगे प्रस्तुत के साथ। आखिरी बात मैं आपसे करके एक अपील है मेरे दिल में, और मैं आपके लिए खुदावंद का शुक्र अदा कर, मेहरबानी करके जरा बैठ जाइए, मेहरबानी करके जरा बैठ जाइए। याद है कि मैंने आपसे एक वक्त मैं यहाँ पंडाल के अंदर ही यूहन्नाबाद के अंदर कहा था कि हमारा इस वक्त कोई चर्च नहीं है और हम एक ग्राउंड के अंदर इबादत करते हैं, और उस ग्राउंड के अंदर हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। और अब हमने अपने चर्च की तामीर का काम शुरू किया है, और आपकी दुआओं और आपकी हदियों और नजरानों की वजह से चर्च बहुत आगे चला गया है। अब उसकी 4 दीवारी मुकम्मल हो चुकी है, अब छत डलने वाली रह गई है। तो मैं आपसे आज रात अपील करूंगा, अगर खुदा आपके दिल में कोई बात डालता है तो उस चर्च के लिए जरूर हमारी सपोर्ट कीजिएगा, जरूर मदद कीजिएगा। यहाँ सिर्फ आपको 2-4 मिनट दूंगा। अगर आपके दिल में कोई बात है कि खुदावंद मैं इस चर्च की मदद करना चाहता हूँ, खिदमत करना चाहता हूँ, ताकि ये चर्च तामीर हो जाए और कलीसिया जो मैदान के अंदर इबादत करती है वो उस जगह पर आ जाए, तो आप इस वक्त अभी आपको 3-4 मिनट दिए जाएंगे। इस दौरान में अपने दिल के अंदर जो हदिया ठहराया है अभी यहाँ पर आप दे सकते हैं। हम आपके पास नहीं आएंगे, ये नौजवान यहाँ खड़े हैं, आपके पास कुछ चीज है? अच्छा, ये अगर कोई किसी के दिल में है, प्रेसिडेंट कहाँ है? क्वायर आ गई है, इसके बाद बीमारों की दुआ करें। हम इस दौरान एक गीत सुनेंगे और उसके बाद